Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture number 17. We will discuss today compensation management. It's a very important topic in human resource management. We will discuss in detail what is compensation administration and what are the types of different compensations. The outline of the session is benefits of proper compensation. What are the benefits of proper compensation? We will discuss what is the motivational effect of compensation on employee and consequences of inadequate compensation. What are the consequences of improper compensation system and concept of wages? What are different concepts in wages, components of remuneration, इसमें देखेंगे हम मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स क्या हैं और रेमुनरेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, थ्योरीज ऑफ remuneration and factors influencing remuneration. While setting remuneration, what internal and external factors the organization must look into to decide the remuneration. And remuneration model, we will also discuss the model of remuneration and what are the challenges of remuneration. And we will then discuss the skill-based and job-based pay. Skill and job-based pay system. What are the difference between skill and job-based pay system? And then we will discuss the incentive payments and what are the effect of incentive on productivity of employees and prerequisites of effective incentive system. What should organization consider before deciding the incentive system for their employees, and what are the different types of incentive system, group incentive plans, incentive for direct workers. This is also another issue, how to decide the incentive for indirect worker. For direct worker, it is easy to calculate the incentive based on their output and productivity, but indirect worker also contribute towards the organization performance, so organization must decide how to compensate or give incentives to indirect workers, and what are the nature of benefits and services. We will discuss different benefits scheme currently applicable in organizations and types of employee benefits and services. What are the different types of employee benefits and services, and principle of fringes. What should organization consider before deciding the fringes, and significant benefits and service program are normally offered in the progressive organization. Common benefits in Pakistan. We will also discuss a few common benefits which organizations are giving to their employees, and then we will briefly discuss the advantages and disadvantages of long-term benefits. As the long-term benefit has motivational effect and loyalty effect on our employee. In long-term benefit scheme, employee prefer to stay for longer period of time in organization, while at the same time there are some issues with the long-term benefits. We will discuss briefly about the advantages and disadvantages of long-term benefits and administration of fringe benefits, and then we will discuss remunerating top executives. This is nowadays is a very special issue, and organizations are facing challenges how to remunerate top executives. We will also discuss in detail in coming lectures and components of executive remuneration. To remunerate executive, what components, what benefits should be given to the top executive, and what are the common type of benefits which are given to top executives in the organizations, and issues in executive remuneration. As compensation is very important topic in human resource management, and in organization, employees mainly concerned with their salary. ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉय काम करते हैं तो बेसिकली दे वर्क फॉर
मनी वो अर्निंग के लिए काम करते हैं, और जो इनकी डिससेटिस्फेक्शन और सेटिस्फेक्शन है डायरेक्टली रिलेट करती हैं मॉनेटरी बेनिफिट से भी। तो ये बड़ा ही एक अहम टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। उसमें डिफरेंट इश्यूज हैं और डिफरेंट जो हैं चैलेंजेस हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को फेस करने पड़ते हैं। तो वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स in detail in couple of lectures. So today we will mainly discuss the concepts here. In today's chapter we will mainly cover the compensation, benefits and consequences of inadequate compensation, wages, concepts and components and theories of remuneration and factor influencing remuneration and remuneration model. We come to the topic now, managing basic remuneration. What are the benefits of proper compensation? Compensation policy aims to attract talented employees and motivate them to put their efforts and commitment to work that increases job satisfaction and work performance. So compensation जो है वो बेसिकली जो है अट्रैक्ट करने के लिए टैलेंटेड जो एम्प्लॉय है, पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए मदद करती हैं। और अगर ऑर्गेनाइजेशन का कंपनसेशन सिस्टम बहुत अच्छा अट्रैक्टिव सैलरीज हैं ऑफर कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि जो टैलेंटेड और कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स हैं वो अप्लाई करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, और जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे और सैलरी से सेटिस्फाइड होंगे, डेफिनेटली इट विल मोटिवेट देम, और वो मोटिवेट होंगे, फिर उनको जो है उनकी परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड किया जाएगा, तो जिसकी वजह से उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल्टी भी होगी और जॉब सेटिस्फेक्शन भी होगी, जिसका इफेक्ट होगा कि टर्नओवर जो रेट है वो ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी कम होगा। एम्प्लॉइज़ को ज़रूरत महसूस नहीं होगी कि ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, और जो कंपनसेशन प्लान है प्रॉपर, अगर इस पे एफर्ट की जाए तो ये हेल्प आउट करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू रिड्यूस इट्स कॉस्ट। उसको हेल्प आउट करता है कि कैसे पे सिस्टम डिवाइस करे, कैसे जो है एक्सपेंडिचर्स करे ऑन सैलरी, कि उसके जो बजट है ओवरऑल वो भी मैनेज हो, कंपनसेशन बजट मैनेज हो, क्योंकि जब सैलरी है इट टेक्स सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। तो इसे प्रॉपर तरीके से अगर मैनेज किया जाए तो इसका एक इफेक्ट ये भी है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो अच्छे तरीके से मैनेज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंपनसेशन। जो सैलरीज दे रहे हैं उसको इफेक्टिवली जो कॉस्ट हैं और जो रिसोर्सेज हैं फाइनेंशियल, उसको मैनेज किया जा सकता है, प्लान किया जा सकता है, और एम्प्लॉय पे इसका जो है अच्छी कंपनसेशन सिस्टम का पॉजिटिव इफेक्ट होता है और मोटिवेशनल इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करती है, और जब परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड किया जाता है तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में वो एम्प्लॉय स्टे करता है और सेटिस्फाइड होता है, जिसका एक और इफेक्ट ये है कि जब टर्नओवर कम होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को हायरिंग दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, और ये रिक्रूटमेंट कॉस्ट दोबारा बेयर नहीं करनी पड़ेगी, और सिस्टम जो है स्मूथली चलेगा। So these are the benefits of the compensation. And what are the consequences of pay dissatisfaction? नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं जब अपनी कंपनसेशन सिस्टम से सेटिस्फाई नहीं होते तो उनमें दो जो बिहेवियर्स हैं, वो जो एक्शंस हैं वो लेते हैं। एक तो वो डिज़ायर फॉर मोर पे, वो डिज़ायर करते हैं कि उनकी पे इंक्रीज़ की जाए, वो कोशिश करते हैं कि उनकी पे इंक्रीज़ की जाए, और दूसरा ये है कि वो एक डिससेटिस्फेक्शन फील करते हैं पे से अपनी, वो सेटिस्फाई नहीं होते, वो समझते हैं जो काम हम कर रहे हैं उतना उसको रिवार्ड नहीं किया जा रहा। जब ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल डिज़ायर फॉर मोर पे के लिए वॉइस उठाते हैं और तो इससे परफॉर्मेंस इश्यूज भी आते हैं। इसमें वर्क जो है एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब होता है, वर्क एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है, और इसके नतीजे में भी कि स्ट्राइक्स भी हो सकती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली जो इंडस्ट्रीज़ में लेबर यूनियंस होती हैं, वर्कर्स होते हैं, वो स्ट्राइक करते हैं और डिमांड करते हैं मैनेजमेंट से कि उनकी पे रेस की जाए। स्ट्राइक्स पे जब जाते हैं तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्शन टाइम है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की आउटपुट और प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन भी करती है। इसी वजह से ग्रीवेंसेस क्रिएट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉय ग्रीवेंस
फील करते हैं, वो डिससेटिस्फाइड होते हैं पे से अपनी, तो वो ग्रीवेंसेस होते हैं उसके, और दे लुक फॉर दी न्यू जॉब्स, और एक और अपॉर्चुनिटी उनके पास होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कोई और जॉब किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाएं। तो जिसका जो इफेक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो ये हैं कि एब्सेंट रेट ज़्यादा होता है, लोग एब्सेंट रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, और जब उनको अच्छी जॉब मिलती हैं तो वो जॉब छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से टर्नओवर रेट ऑर्गेनाइजेशन में हाई होता है। दूसरा, जब पे डिससेटिस्फेक्शन हो तो जॉब में अट्रैक्टिवनेस नहीं फील होती, एम्प्लॉइज़ जो हैं अट्रैक्टिवनेस नहीं फील करते जॉब में, और उनके लिए जॉब में इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उनकी, तो उसकी वजह से जॉब डिससेटिस्फेक्शन होती है, काम अच्छा नहीं करते, अपना काम अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म करते, एब्सेंट होते हैं अपने काम से, दिलचस्पी नहीं लेते, जिसकी वजह से कि एक तो है जॉब डिससेटिस्फेक्शन का इफेक्ट है कि उनकी हेल्थ पे इफेक्ट होता है, मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ पे इफेक्ट होता है, दे पे विजिट्स टू द डॉक्टर को विजिट करते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें मेडिकल बेनिफिट्स दिए हुए हैं तो ये भी हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट भी ऑर्गेनाइजेशन की फिर बढ़ सकती हैं। इसी तरह साइकोलॉजिकल विड्रॉल हैं और पुअर हेल्थ और विजिट्स टू द डॉक्टर की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की एक तो प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है, और अगर बेनिफिट्स हैं मेडिकल तो ऑर्गेनाइजेशन की जो मेडिकल कॉस्ट हैं वो भी इंक्रीज कर जाती हैं। तो ओवरऑल जो प्रॉपर कंपनसेशन सिस्टम है उसका एडवांटेज है, इट शुड बी अ फेयर एंड, और एम्प्लॉय को फील हो कि उनका जो वेजेस और सैलरीज हैं वो फेयर अनफ हैं और वो competitive हैं और अट्रैक्टिव सैलरीज हैं। अदरवाइज अगर प्रॉपर तरीके से पे सिस्टम नहीं डिवाइस किया हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छी पे नहीं ऑफर करी, तो कॉन्सिक्वेंटली इसका जो नतीजा आता है वो प्रोडक्टिविटी जो डिक्लाइन होता है, आउटपुट जो है डिक्लाइन होती है और पुअर परफॉर्मेंस की सूरत में आता है, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में जो है टर्नओवर रेट और एब्सेंटिज्म रेट और जो हैं अदर इश्यूज जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स और स्ट्राइक्स, और इस सूरत में ओवरऑल एक वर्क सिस्टम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। तो इस वजह से एक प्रॉपर कंपनसेशन सिस्टम की बहुत अहमियत है एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, टू अट्रैक्ट एंड मोटिवेट कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय। मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट, मिनिमम वेज में होता है कि इतनी वेज दी जाए कि वो अपनी एक ज़िंदगी गुजार सके अच्छे तरीके से, उसकी लिविंग हो, जिसको कह सकते हैं हम सब्सटेनेंस अलाउंस हो, और इतना हो कि उसका जो काम कर रहा है वो उसको फील हो कि उस काम के उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। ये बेसिक मिनिमम वेज लेवल है जो एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। फेयर वेजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वेजेस जो है इतनी फेयर अनफ होनी चाहिए इन कंपेयर टू अदर जॉब इन सिमिलर इंडस्ट्री इन नेबरहुड, जो हैं जो इसी नेचर ऑफ जॉब को जो और इंडस्ट्री पे कर रही हैं नेबरहुड में या कंट्री लेवल पे, वो कंपेरेबल अनफ होनी चाहिए, वो उनके साथ कंपेरेबल वर्थ होनी चाहिए उसकी जितना वो पे कर रहे हैं, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नेबरहुड या कंट्री लेवल पे एक प्रोफेशन में, एक ट्रेड में या एक इंडस्ट्री में जो रेट हैं वो आपस में कंपैरेटिव होना चाहिए, कंपैरेबल होना चाहिए। जो प्रीडोमिनेंट रेट है कंट्री में उस ट्रेड का और इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जो नेचर ऑफ जॉब है, सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स हैं, उनका एक आपस में कंपैरिजन होना चाहिए, कंपैरेटिव होने चाहिए वो। लिविंग वेज का जो कॉन्सेप्ट है ये फेयर वेज से अबव है। इसमें ये है कि ना कि सिर्फ उसको बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की, बल्कि इतना उनको जो है उसकी जो अदर कंफर्ट हैं, जो फैमिली इश्यूज़ हैं, उनमें भी असिस्ट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, और उसकी सैलरी ऐसी होनी चाहिए जो उनके जो अदर कंफर्ट्स हैं और लाइफ के लिए, और जो फैमिली के जो है मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी हैं, बच्चों की एजुकेशन है, और जो अपने जो ओल्ड एज बेनिफिट्स हैं वो देने चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सके और अपनी जो दीगर ज़रूरियात हैं और कंफर्ट्स हैं वो भी पूरी कर सके। टीम बेस पे ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली अब जो है इंडिविजुअल वर्कर से टीम बेस्ड वर्क एनवायरनमेंट की तरफ जो है ऑर्गेनाइजेशन मूव कर रही हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। इंटरेक्शन आसान हो गई है, कम्युनिकेशन आसान हो गई है,
और जिसकी वजह से अब जो प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो टीम वर्क की सूरत में काम करती हैं। उसमें डिफरेंट जो कम्प्लीमेंट्री स्किल के लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो मिलकर एक किसी पर्पज़ या गोल के लिए काम करते हैं और सारे एफर्ट करते हैं बेसिकली वन गोल और कोई एक पर्पस के लिए। और इनके आपस में जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं कम्प्लीमेंट्री स्किल्स होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एट द एंड एक आउटपुट प्रोजेक्ट की सूरत में आ सकता है या किसी प्रोडक्ट या सर्विस की सूरत में आ सकता है। तो अब ये इशू भी है कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस में कि कैसे वेजेस सेट की जाएं टीम बेस्ड वर्क एनवायरनमेंट में। रिम्यूनरेटिंग प्रोफेशनल्स, दोबारा नंबर 5 है रिम्यूनरेटिंग प्रोफेशनल्स। अब ये जो इशू है एक और जो प्रोफेशनल्स को पे करना है वो आम वर्कर या दूसरी जो जनरल एजुकेशन की जॉब्स हैं उनसे कितना हाई पे करना है, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं और इसी तरह आईटी प्रोफेशनल्स हैं। जो रिसेंट जो बूम आया था आईटी में और एकदम से इनोवेशन और इंट्रोडक्शन और न्यू टेक्नोलॉजी ने आईटी प्रोफेशनल्स की डिमांड बड़ी इंक्रीज़ की थी और जिसकी वजह से बड़ी हाईली पेड जॉब होती थी आईटी प्रोफेशनल्स की। तो ये भी एक इशू है कि अब वो प्रोफेशनल कुछ जगहों पे अब मैच्योरिटी आ गई है और जो है उन प्रोफेशनल्स की अब इतनी डिमांड नहीं है जितनी पहले थी। तो उन प्रोफेशनल्स को क्या ऑफर किया जाए, क्या सैलरी उनकी सेट की जाए। अर्लियर दे वर पेड वेरी हाई सैलरी, अर्लियर देवर पेड वेरी हाई सैलरी, उनकी डिमांड थी। तो ये भी इशू है कि जो मैनेजरल पोस्ट पे हैं या प्रोफेशनल्स हैं उनकी क्या पे होनी चाहिए एज कंपेयर टू द वर्कर एंड अदर स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ। तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ ये भी एक इशू है। जब वेज और सैलरी सेट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट मिलने चाहिए, उनको बेनिफिट जो होने हैं वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ जितने मिलने चाहिए और कैसे उनकी वेजेस सेट की जाएं। और ये इश्यूज हैं कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के, उसके नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और जो बेनिफिट्स हैं और राइट्स हैं वो क्या होने चाहिए। नंबर 7 इज एक्सपैट्रिएट्स एंड एग्जीक्यूटिव्स। अब एक इशू है कि ग्लोबल वर्ल्ड है, जो है ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल लेवल पे जो है ऑपरेट कर रही हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें अपने एग्जीक्यूटिव्स को डिसलोकेट करना पड़ता है किसी दूसरी कंट्री में या फॉरेन कंट्री से कोई एक्सपैट्रिएट्स आके इधर जैसे काम करे तो उसकी जो सैलरी है वो कैसे सेट की जाए। उसकी सैलरी उसके बेस कंट्री के जो उसके कंट्री ऑफ ओरिजिन है जहाँ से वो आया है उसकी कंपेरेबल होनी चाहिए और उसको किस करेंसी में पे करना चाहिए, उसको क्या बेनिफिट्स देने चाहिए। तो ये इश्यूज हैं जो एक्सपैट्रिएट्स और एग्जीक्यूटिव्स के सैलरी में ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वेजेस के। नाउ वी गो फर्दर एंड डिस्कस व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रेम्यूनरेशन। इसमें जो रेम्यूनरेशन में है इसमें इंक्लूडिंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल जो होते हैं वो बेनिफिट्स वो इंक्लूड होते हैं। एक तो होता है वेज एंड सैलरी, उसके बाद इंसेंटिव्स हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, परक्विजिट्स हैं और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं। दीज कंपोनेंट्स मेक अप रेम्यूनरेशन और सैलरी पैकेज। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है। रेम्यूनरेशन के दो पार्ट्स हैं बेसिकली, एक फाइनेंशियल और एक नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट। फाइनेंशियल में वेजेस एंड सैलरी आती हैं। वेजेस नॉर्मली कहते हैं जो आवर बेसिस पे पे किया जाता है वर्कर को, तो वो वेजेस होती हैं और जो कैलकुलेट करके नंबर ऑफ आवर्स जो है वीक में उसको कैलकुलेट करके पर आवर की जो रेट सेट किए जाते हैं उसको नॉर्मली वेजेस कहते हैं। और जो मंथली बेसिस पे रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ आवर्स जो हैं उसकी कैलकुलेशन नहीं होती उस पर, और मंथली बेसिस पे होती है, जो सैलरी होती है उसको पे होती है उसको सैलरी कहते हैं, और जो मंथली बेसिस पे होती है उसको सैलरी कहते हैं। इंसेंटिव्स क्या होते हैं, इसमें इंडिविजुअल प्लान्स हैं, ग्रुप प्लान्स हैं। इसमें इंसेंटिव प्लान में है कि जो आउटपुट है, एफिशिएंसी है या परफॉर्मेंस है उसको रिवॉर्ड किया जाए। और इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या इंसेंटिव्स या परफॉर्मेंस बेस्ड या रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली यूज़ करती हैं टू गिव इंसेंटिव्स टू देयर एम्प्लॉयज़। फ्रिंज बेनिफिट्स में हैं सीपी, कैमुलेटिव प्रोविडेंट फंड हैं, ग्रेजुएटी है, मेडिकल फैसिलिटी हैं। ये फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं। जो बेनिफिट सीपी फंड और ये और जीपी फंड जो है बेसिकली
ये है कि एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट की जाती है, कुछ परसेंटेज की, और उतना ही एम्प्लॉयर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंट्रीब्यूट करती है। और जब वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है तो उसे लमसम वो जो कंट्रीब्यूशन और जो उसकी डिडक्शन थी वो ऐड करके उसे पे किया जाता है। तो इसी तरह मेडिकल फैसिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती हैं। तो ये फ्रिंज बेनिफिट्स हैं। परक्विजिट्स जो होते हैं नॉर्मली एग्जीक्यूटिव्स के लिए होते हैं, जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, टॉप लेवल पोजीशंस पे होते हैं, उनके लिए कुछ बेनिफिट्स होते हैं जिसमें कंपनी कार दी जा सकती हैं, क्लब मेंबरशिप्स हैं, फर्निश्ड हाउस देते हैं, स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स हैं जिसमें प्रॉफिट इन केस ऑफ प्रॉफिट, और उनको एक उसके बेनिफिट्स की सूरत में, परक्विजिट की सूरत में उन्हें जो है स्टॉक्स जो हैं जो कंपनी के वो ऑफ़र किए जाते हैं। और एक है नॉन फाइनेंशियल। अब दूसरा पार्ट जब आता है नॉन फाइनेंशियल, ये जो स्ट्रिक्टली रिलेटेड है वो जॉब से रिलेटेड है, जॉब कंटेंट से, जॉब के जो डिस्क्रिप्शन है और जो जॉब की वर्किंग कंडीशन है उससे रिलेट करता है। ये फाइनेंशियल नहीं, नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं इसमें। ये कितनी चैलेंजिंग जॉब है, इसमें ग्रोथ के कितने चांसेस है, इस जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कितनी है, सुपरविजन कितनी है, कितनी सुपरविजन दी जा रही है, या कितना सुपरविजन की जो है अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, और वर्किंग कंडीशन कितनी अच्छी दी हुई है, और ऑफिस एनवायरनमेंट, और ये चीज़ें नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स में होती हैं। जितनी चैलेंजिंग टास्क होंगी, जिसमें अथॉरिटी हो जॉब में, जॉब एम्पावरमेंट का जैसे, और जॉब इनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली नॉन फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं रेम्यूनरेशन के, मगर उतने ही जो हैं इंपॉर्टेंट जो होते हैं नॉन फाइनेंशियल कंपोनेंट्स भी होते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय अपनी सैलरी से तो सेटिस्फाइड है, मगर अदर फैसिलिटीज़, उसको जॉब में अट्रैक्टिवनेस नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं है, ग्रोथ नहीं है उस जॉब में, तो मे बी वो सेटिस्फाइड ना हो। तो ऑर्गेनाइजेशन को जब रेम्यूनरेशन प्लान डिवाइस करना होता है, सेट करना होता है, तो इसमें ऐसा कम्बिनेशन होनी चाहिए जिसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों आस्पेक्ट्स को कंसीडर किया जाए। अच्छी वर्किंग कंडीशंस भी दी जाएं, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट हो, जॉब की जो नेचर ऑफ जॉब या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसे डिज़ाइन की जाएं कि एम्प्लॉय के लिए अट्रैक्टिवनेस हो उसमें। तो दोनों कंपोनेंट जो हैं फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इफेक्टिव रेम्यूनरेशन के लिए, एम्प्लॉय को सेटिस्फाई रखने के लिए और मोटिवेटेड अनफ रखने के लिए ज़रूरी हैं। थ्योरीज ऑफ रेम्यूनरेशन क्या है, हम डिस्कस करेंगे। थ्योरीज ऑफ रेम्यूनरेशन क्या है, इसमें जो बेसिक जो है मॉडल हैं, इसमें देखें कि जो एम्प्लॉय हैं वो बेसिकली अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करता है और गोल सेट करता है। उसके सामने गोल्स होते हैं जो उसने अचीव करने होते हैं, आउटपुट्स होती हैं जो उसने अचीव करनी होती है, और उसकी एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये अगर आउटपुट करूँगा, अचीव करूँगा, ये परफॉर्मेंस दूंगा तो इसकी जो इतना उसको रिवॉर्ड मिलेगा, उसके वर्क का इतना रिवॉर्ड मिलेगा, उसकी एक्सपेक्टेशन सेट हुई होती है। तो उसके बाद परफॉर्मेंस इज़ रिवॉर्डेड, परफॉर्मेंस जो होती है उसकी इवेलुएट की जाती है और उसकी बेसिस पे उसे रिवॉर्ड किया जाता है। तो उसके बाद एम्प्लॉय जो है वो कंसीडर करता है कि आया कि उसको जो रिवॉर्ड मिला है और जो उसकी परफॉर्मेंस है मैच कर रही है, इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो वो सेटिस्फाइड होगा, वो फील करेगा कि इक्विटी है, और वो जो मैच कर रहे हैं उसके जो उसने एफर्ट्स की, जो परफॉर्मेंस दी, वो रिवॉर्ड जो उसको मिला है वो मैच कर रही है, उसमें इक्विटी है, तो वो सेटिस्फाइड होगा। और उसकी अगर नहीं है तो आपस में मैच नहीं है, इनइक्विटी है बिटवीन परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड, तो उसके वो डिससेटिस्फाइड होगा। तो इसकी बेसिस पे बाद में वो एम्प्लॉय अपनी नए एक्सपेक्टेशन सेट करता है, नए गोल सेट करता है बेस्ड ऑन देयर हिज प्रेयर एक्सपीरियंस, और उसके बाद ये लूप होल में ये उसकी एक्सपेक्टेशंस जो है और परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड साइकिल है वो चलता है। तो इसकी बेसिस पे रेम्यूनरेशन जो थ्योरीज हैं वो बेस करती हैं। अब एक हम रीइंफोर्समेंट थ्योरी क्या है, वो कहती है कि बिहेवियर अगर डिज़ायरेबल हो और उस बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो जो है इफेक्टिव परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट कर रहा है और वो रिपीट हो, तो उसे रिवॉर्ड किया जाए। अगर वो बिहेवियर उसे रिवॉर्ड किया जाए जो बिहेवियर एम्प्लॉय ने परफॉर्म किया है और वो इतना
रिवॉर्ड जो है उसको वो उसकी एक्सपेक्टेशन से मैच करता हो, पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो उसका कि ये जो उसने आउटपुट दी है, ये जैसे जॉब उसने अपनी परफॉर्म की है, जो बिहेवियर परफॉर्म किए हैं जॉब में, उसको रिवॉर्ड किया गया, तो ये लाइकलीहुड है कि वो बिहेवियर रिपीट होगा दोबारा। अगर उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो एक्सपीरियंस पॉजिटिव है, तो वो अल्टीमेटली वो बिहेवियर को रिपीट करेगा, और अगर बिहेवियर रिपीट होगा तो अगेन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। इन केस अगर उसका बिहेवियर जो है वो रिवॉर्ड प्रॉपरली नहीं किया गया तो अनलाइकली है कि वो बिहेवियर दोबारा रिपीट करेगा, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन करे, उसकी परफॉर्मेंस सफ़र करे। तो अच्छा जो बिहेवियर हैं, इफेक्टिव बिहेवियर हैं, जो डिफ्रेंशिएट करते हैं इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव वर्कर में, उन बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन को अपने रेम्यूनरेशन या कंपनसेशन सिस्टम में इनकरेज करना चाहिए, और इस तरह इनकरेज करना चाहिए कि और जो इंडिविजुअल फील करे कि उसकी जो बिहेवियर है उसे प्रॉपरली रिवॉर्ड किया गया है और उससे पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो, तो वो बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी है और कि वो उस बिहेवियर को रिपीट करेगा, और जब रिपीट करेगा तो अगेन एक लूप होल, एक परफॉर्मेंस साइकिल चलेगी और वो उससे अगेन उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगी डिज़ायरेबल बिहेवियर को रिपीट करने से। सेकेंड थ्योरी है इक्विटी थ्योरी। ये आदम उस इक्विटी थ्योरी एम्फेसाइज टू हैव इक्विटी इन पे स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉय। वो कहते हैं कि बेसिकली जो एम्प्लॉय की सैलरी है, उसकी पे स्ट्रक्चर है, उसमें इक्विटी होनी चाहिए कि अगर इफ एम्प्लॉय फील दैट देयर एफर्ट्स आर वेल रिवॉर्डेड, दे विल पुट मोर एफर्ट्स एंड विल बी सेटिस्फाइड विद देयर जॉब। अगर वो फील करते हैं कि जो काम किया है उन्होंने, वर्क जो एफर्ट्स की हैं और वो उनको प्रॉपरली रिवॉर्ड किया गया है, कि जितनी एफर्ट की है उसके अगेंस्ट उसको इक्वल रिवॉर्ड रिसीव हुआ है, तो वो सेटिस्फाइड होगा अल्टीमेटली, और वो बाद में फ्यूचर में और एफर्ट पुट करेगा, और क्योंकि उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी। इन केस ऑफ इनइक्विटी फीलिंग दे विल बी डीमोरलाइज एंड डिससेटिस्फाइड रिजल्टिंग इनटू लो प्रोडक्टिविटी। अगर वो फील करते हैं कि जो उनकी एफर्ट्स हैं, जो उन्होंने मेहनत की है, उसको प्रॉपरली रिवॉर्ड नहीं किया गया, तो उनको इनइक्विटी फील होगी कि दैट देयर इज़ अ गैप बिटवीन वर्क एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड, तो उसकी वजह से वो डिससेटिस्फाइड होंगे, डीमोरलाइज्ड हो जाएंगे, और जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ की है प्रोडक्टिविटी सफ़र करेगी और डिक्लाइन करेगी। तो ये बेसिकली ये थ्योरी की ये है जो ये थ्योरी इक्विटी बेस्ड थ्योरी जो है इस कॉन्सेप्ट पे बेस करती हैं, और इसमें जो है परसेप्शन ऑफ फेयरनेस जो होती है, बेसिकली जो इम्प्लाई अबाउट दी सैलरी या पे अपनी डिटरमिन करता है, वो 3 फैक्टर्स की वजह से करता है। एक इंडिविजुअल इक्विटी होती है, एक इंटरनल इक्विटी होती है, और एक एक्सटर्नल इक्विटी होती है। इंडिविजुअल इक्विटी में ये होता है कि वो देखता है कि सेम काइंड ऑफ जॉब में, सिमिलर नेचर ऑफ द जॉब में जो दूसरे इंडिविजुअल्स हैं उनको क्या पे किया जा रहा है। अगर फॉर एग्जांपल एक ही असिस्टेंट मैनेजर हैं मार्केटिंग के, और वो फिर जो असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग ए हैं वो अपनी पे कंपेयर करेगा असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग बी से और सी से, अगर वो फील करता है कि उसकी जो है पे है जो वो इक्वल है बी और सी से, जो सिमिलर नेचर ऑफ जो है काइंड ऑफ जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो सेटिस्फाइड फील होगा। अगर वो फील करे कि उनकी पे में डिफरेंस है, जैसे नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर में होता है कि डिफरेंट पैकेजेस ऑफर किए जाते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स को बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस स्किल्स, तो उसकी वजह से वो एक मे बी इनइक्विटी फील करे, वो फील करे कि उसके पास स्किल्स हैं, वो डिज़ायर आउटपुट दे रहा है, मगर इवन देन जो है दूसरे एम्प्लॉय सेम ही जॉब पे काम कर रहे हैं, उनकी पे ज़्यादा है, तो इस केस में वो इनइक्विटी फील करेगा। इंटरनल इक्विटी में होता है कि वो देखता है कि जो जॉब्स में डिफरेंस हैं, बिटवीन दी जॉब्स पे डिफरेंस हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या है। जैसे अभी आपको एग्जांपल दी, असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग की जो पोस्ट है, एक सिमिलर लेवल की जॉब है एज असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस को ऑफर की जा रही है सैलरी असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग से ज़्यादा, तो असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग जो है वो फील करेगा कि उसकी जो पे है वो फेयर अनफ नहीं है,
तो और इक्विटी नहीं है, तो वो कंपेयर करता है सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स जो होती हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बेसिस पे वो इंटरनल इक्विटी उसे कहते हैं, उसकी बेसिस पे वो परसेप्शन डेवलप करता है कि कितनी फेयर है, कितनी इक्विटी है उसकी पे में। एक्सटर्नल इक्विटी में क्या करता है वो, जो सेम काइंड्स ऑफ जॉब्स हैं जो इंडस्ट्री में और ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे जो है एम्प्लॉयर जो पे कर रहे हैं अपने इंडिविजुअल को, उससे कंपेयर करते हैं। जैसे कि एक काम कर रहा है यूफोन में असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग, तो वो क्या करेगा, असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग जो है मोबाइल लिंक में जो पे ले रहा है उससे अपने आप को कंपेयर करेगा। अगर मोबाइल लिंक हायर पे दे रहा है असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग को एज कम्पेयर टू यूफोन, तो जो यूफोन का एम्प्लॉय है वो डिससेटिस्फाइड फील करेगा, वो इनइक्विटी फील करेगा। तो इन जो है डायमेंशंस, इंडिविजुअल इक्विटी, इंटरनल इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी की बेसिस पे वो एक परसेप्शन ऑफ फेयरनेस डेवलप करता है। अगर कि वो फील करता है कि वो इन तीनों डायमेंशंस में इक्विटी हैं, तो डेफिनेटली वो सेटिस्फाइड होगा अपनी पे से, जो रिजल्ट करेगी उसकी मोटिवेशन में। मोटिवेशन उसका लेवल हाई होगा तो उसकी जॉब कमिटमेंट बढ़ेगी, वो जॉब इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी उसकी, और जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगी। तो ये तो है इक्विटी थ्योरी। नाउ वी डिस्कस द थ्योरीज ऑफ रेम्यूनरेशन में एजेंसी थ्योरी क्या है। इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज आर टू मेन स्टेक होल्डर्स। एजेंसी थ्योरी बेसिकली कहती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में दो जो हैं स्टेक होल्डर्स हैं मेन, जो एक तो एम्प्लॉयर हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है और एक एम्प्लॉयज़ हैं उसके। तो ये जो एम्प्लॉयर जो हैं वो एक्ट करता है एज अ प्रिंसिपल एजेंट एंड एम्प्लॉयज़ अज्यूम द रोल ऑफ एजेंट। जो एम्प्लॉय हैं वो बेसिकली एजेंट हैं और जो एम्प्लॉयर हैं वो प्रिंसिपल है। अब दोनों एफर्ट करते हैं, एम्प्लॉयर चाहता है और जो कि उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो, और जो एजेंट चाहता है वो चाहता है कि उसको जो है रेम्यूनरेशन ज़्यादा हो, एजेंसी कॉस्ट ज़्यादा। अच्छा, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय को जो है इस एजेंसी कॉस्ट, जो एम्प्लॉय को पे दे रहा है वो इसकी एजेंसी कॉस्ट है। तो डेफिनेटली जो एम्प्लॉयर होता है उसकी जो कोशिश होती है वो एजेंसी कॉस्ट कम हो, और एम्प्लॉय जो एजेंट होता है उसकी कोशिश होती है कि एजेंसी कॉस्ट इंक्रीज करे। तो इसमें ये है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है दे शुड ट्राई टू चूज रेम्यूनरेटिंग स्कीम्स दैट अलाइन इट्स ओन इंटरेस्ट विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ एजेंट। तो इसमें ये है कि जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है। एजेंट जो चाह रहा है कि उसकी रेम्यूनरेशन ज़्यादा हो, एम्प्लॉयर जो प्रिंसिपल है वो चाह रहा है जो रेम्यूनरेशन की फॉर्म में जो एजेंसी कॉस्ट है वो कम हो। तो इसमें यह है कि एम्प्लॉयर को ऐसी जो है रेम्यूनरेशन देनी चाहिए जिससे उसके अपने इंटरेस्ट भी फुलफिल हो रहे हों और एम्प्लॉय की जो एजेंट की एक्सपेक्टेशन भी मैच कर रही हों। तो इसमें यह नहीं कि अगर जो है एम्प्लॉयर है, प्रिंसिपल है, अगर एजेंसी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम करने की कोशिश करता है, कम पे करता है, तो उससे डिससेटिस्फेक्शन होगी, उसके इंटरेस्ट अलाइन नहीं होंगे एक्सपेक्टेशन से जो है एजेंट की। तो इस वजह से इतना फेयर अनफ उसको पे करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, जिसमें ये जो हैं एजेंट्स हैं, कि ताकि उनकी एक्सपेक्टेशन भी मीट हो और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव हों। इसमें बिहेवियर ओरिएंटेड है जिसमें मेरिट बेस पे हैं, और आउटकम ओरिएंटेड है जिसमें प्रॉफिट में शेयरिंग या कमीशन देते हैं सेल्स टारगेट पे। तो ये दो सिस्टम हैं जो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं टू डिसाइड द रेम्यूनरेशन स्कीम। Then what are the factors that influence remuneration? There are many factors from internal and external side that affect the remuneration. जब ऑर्गेनाइजेशन रेम्यूनरेशन सेट करती है तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को देख के सेट की जाती हैं रेम्यूनरेशन। इसमें है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। जो क्या स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन की और किस किस्म का रेम्यूनरेशन होती है, इसमें हम बात करते हैं आगे एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय के जो इटसेल्फ होते हैं वो इटसेल्फ जो होता है बड़ा इन्फ्लुएंस होता है इंटरनल फैक्टर्स में। उसकी अपनी हर एम्प्लॉय की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पर्सनैलिटी होती है, पोटेंशियल होते हैं, स्किल्स होते हैं।
एक्सपीरियंस होते हैं, क्वालिफिकेशन लेवल होता है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन रेम्यूनरेशन सेट करती है, सैलरी सेट करती है, तो ये इशू को कंसीडर करती है। जॉब इवैल्यूएशन क्या है? जॉब इवैल्यूएशन में बेसिकली वर्थ ऑफ द जॉब देखी जाती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, किस जॉब की कितनी वर्थ है उसको इवैल्यूएट करके उसकी वर्थ होती है, उसके अकॉर्डिंगली फिर जॉब जो है उनकी पे सेट की जाती है। तो इस तरह जो है वो डिपेंड करता है कि विद इन दिस सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मुख्तलिफ जॉब्स हैं उनकी वर्थ की बेसिस पे जो है सैलरी डिफरेंट जॉब्स की डिफरेंट सेट की जाती है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपको एग्जांपल देता हूँ, जो ऑर्गेनाइजेशन आईटी इंडस्ट्री है जिनका फोकस ही आईटी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे है, तो वो जो है वो मेन जो है कोर एम्प्लॉइज उसके होंगे वो जो आईटी प्रोफेशनल्स होंगे। तो वो ये उनकी जो जॉब है मे बी जो असिस्टेंट मैनेजर एचआर है उसको इतना पे ना करें जितना आईटी प्रोफेशनल्स को करें, क्योंकि वो उनके कोर स्टाफ है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन जो सर्विसेज हैं वो डिपेंड कर रही हैं आईटी एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज पे, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करिए। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में आईटी प्रोफेशनल्स की वर्थ है, क्योंकि जो एग्जिस्टेंस है और जो पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन का वो आईटी रिलेटेड सर्विसेज है। तो इस तरह जो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बेसिस पे जॉब इवैल्यूएशन करके ऑर्गेनाइजेशन वर्थ डिसाइड करके सैलरी सेट करती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो ये एक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल की बेसिस पे भी इंडिविजुअल की जो पे है वो सेट होती है और देखा जाता है कि किस जॉब में कितनी एफर्ट है और किस जॉब में किस इंडिविजुअल ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये फैक्टर भी है जो इन्फ्लुएंस करता है सैलरी डिसाइड करने में एम्प्लॉय की। इसमें यह है कि एक ही नेचर की जॉब होती है, एक ही हिरार्की पे इंडिविजुअल्स जॉब कर रहे होते हैं, मगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो उसको एक्स्ट्रा बोनस दिए जाते हैं या एडवांस इंक्रीमेंट दिया जाता है, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से सैलरी का डिफरेंस भी आ जाता है। तो ये फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं रेम्यूनरेशन को। एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो है इकोनॉमी, डेफिनेटली जब इकोनॉमी ग्रोथ में होती है तो जो है ओवरऑल प्रोडक्शन साइकिल चल रहा होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रो कर रही होती हैं, कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज की डिमांड होती है, जिसकी वजह से एट टाइम लेबर की जो है डिमांड बढ़ जाती है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो कर रही होती हैं, तो जिसकी वजह से वो जब डिमांड लेबर की बढ़ती है तो वो फिर उनकी सैलरी ज़्यादा सेट की जाती है। और इसके बरक्स अगर इकॉनमी डिक्लाइन कर रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई जो होगी वो अबेंडेंट हो जाएगी लेबर की, तो उनको जॉब जो है अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये है कि ऑर्गेनाइजेशन उनको कम पे करे। तो और सोसाइटी भी डिटरमिन करती है, जो सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन की परसेप्शन क्या है, वो जो परसेप्शन है जो वो उसकी कॉस्ट जो है सर्विस चार्जेस हैं जो वो प्रोडक्ट के लिए चार्ज कर रहे हैं, प्राइस उस पर डिपेंड करती है। और एक इमेज होता है तो उसके अगेंस्ट वो उसको एक सोसाइटी में एक इमेज होता है जिसको कंसीडर करते हुए उसे रेम्यूनरेशन एम्प्लॉय को पे करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी क्वालिटी सर्विसेज देती है और सर्विसेज देती हैं, फोकस करती हैं कि जो कस्टमर्स हैं उनके वो सेटिस्फाइड हों और वो इनकी एक परसेप्शन है एक पॉजिटिव डेवलप हुई होती है, तो उस सोसाइटीज़ के कंसर्न्स को देखते हुए रेम्यूनरेशन सेट की जाती हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी फेयर अनफ हों कि उनकी सैलरीज भी एक कंपेटिटिव हों, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा रही होती हैं अपने जो है फ्रॉम दी प्राइसिंग ऑफ देयर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट। लेबर मार्केट, इसी तरह लेबर मार्केट क्या किस जो है नेबरहुड में या रीजन में लेबर मार्केट की क्या कंडीशन है, लेबर की सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है। देन कॉस्ट ऑफ लिविंग है कि इन्फ्लेशन कितना हुआ है, उसकी बेसिस पे जो है सैलरी इफेक्ट होती है। अगर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से फिर जो ऑर्गेनाइजेशन को कंपनसेट करना पड़ता है, कोई परसेंटेज रख के उनको इनके एनुअल या एनुअल जो है सैलरी रेज देना पड़ता है। लेबर यूनियंस कितनी इफेक्टिव हैं कि लेबर यूनियंस जिन इंडस्ट्री में बहुत इफेक्टिव हैं वो फिर बारगेन कर लेती हैं हायर पे के लिए, और जिन इंडस्ट्री में डिस्पर्स हैं कोई प्रॉपर लेबर यूनियंस नहीं है एक, तो उन इंडस्ट्री में नॉर्मली कम पेज होती हैं। लेजिस्लेशंस क्या कहती हैं, अब जैसे मिनिमम वेज एक्ट है
पाकिस्तान में भी एक गवर्नमेंट ने जैसे सेट किया है कि मिनिमम वेजेस जो हैं वर्कर की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि 6,000 होनी चाहिए पर मंथ उन्होंने, या 7,000 होनी चाहिए, रिवाइज किया था। तो ये लेजिस्लेशन फोर्स करती हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनकी मिनिमम जो है पे कितनी होनी चाहिए। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं रेम्यूनरेशन को। तो अब हम बात कर रहे थे इंटरनल फैक्टर्स में ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी कैसे इन्फ्लुएंस करती है, तो इस पे बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं ना। एक होता है ग्रोथ पे जा रही है, वो इन्वेस्ट टू ग्रो, वो इन्वेस्ट कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, एक्सपेंड कर रही हैं, न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रही हैं। तो उस केस में वो क्या करेंगी, मर्ज करेंगी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से मिल के। एक मर्जर होता है जिसमें दो कंपनीज मिल के एक एंटिटी बनाती हैं। तो और उसके बाद वो इन्वेस्ट कर रही हैं ग्रोथ पे अपनी। तो उसमें क्या होगा, वो चाहती हैं अपने एम्प्लॉय से कि वो एफर्ट पुट करें, इनकरेज हो, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन हो। और तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि हाई कैश एंड इंसेंटिव देते हैं फॉर परफॉर्मेंस। हाई कैश ऑफर करते हैं, हाई सैलरीज देते हैं ताकि अट्रैक्ट करें जो कॉम्पिटेंट और एनर्जेटिक स्टाफ है उसको अट्रैक्ट करें, उन्हें मोटिवेट करें। उसके लिए हाई कैश एंड इंसेंटिव देते हैं बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। और जो दूसरे बेनिफिट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म इस तरह के, वो थोड़े कम होते हैं, मॉडेस्ट होते हैं। सेकंड स्ट्रेटजी ये है कि रिटेन रखे अपनी अर्निंग्स को। जैसे मार्केट में मैच्योरिटी है, नॉर्मल ग्रोथ है, तो ये इस सूरत में वो सिर्फ मैनेजमेंट स्किल्स को जो है रिवॉर्ड करेंगे। रिम्यूनरेशन स्ट्रेटजी होगी कि जस्ट जो है वो मैनेजमेंट स्किल्स को जो है रिवॉर्ड करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि बस मार्केट को सस्टेन करें, मार्केट को, अपने अर्निंग्स को प्रोटेक्ट करें ओनली। तो उसमें जो है एवरेज इंसेंटिव्स होते हैं विद एवरेज कैश ऑन यूनिट एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। तो उसमें जो इंसेंटिव्स होते हैं वो कम होते हैं क्योंकि ग्रोथ नहीं है इतनी मार्केट में। तो उसमें एवरेज इंसेंटिव्स होते हैं और एवरेज कैश होता है। सैलरीज भी इतनी कंपेटिटिव, हाईली कंपेटिटिव नहीं ऑफर करते। और जो बेनिफिट्स होते हैं स्टैंडर्ड टाइप के बेनिफिट्स होते हैं जो और ऑर्गेनाइजेशन भी दे रही होती हैं कि जस्ट टू रिटेन देयर एम्प्लॉयज। और इसके बाद हार्वेस्ट अर्निंग्स, इन्वेस्ट समवेयर एल्स। अब सम ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो अनफॉर्चुनेटली डिक्लाइन फेज में होती हैं, या किसी इंडस्ट्री में ओवरऑल जो है उस इंडस्ट्री में डिक्लाइन आया हुआ है, तो उसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसकी वजह से वो अपनी जो जितनी भी उसने अर्निंग्स होती हैं वो चाहती है कि कमाई उस इंडस्ट्री से, क्योंकि वो जो है मार्केट जो इस वक्त है मेच्योरिटी पे है, लेवल पे हैं या डिक्लाइन पे हैं। तो और वो चाहती है कि इस इंडस्ट्री से एग्जिट करे और किसी अपना जो दूसरी किसी इंडस्ट्री में मार्केट में इन्वेस्ट करे। तो ये डाइवर्सिफिकेशन भी होती है। तो इसमें जो होती है, जो फोकस होता है, रेम्यूनरेशन स्ट्रेटेजी होता है, उन कॉस्ट कंट्रोल होता है कि कम से कम सैलरी का, कंपनसेशन का बजट रखा जाए। तो इस वजह से कि डिक्लाइन होती है मार्केट में और जो है मेच्योरिटी लेवल पे यह हो सकती है, तो वो अपनी अर्निंग्स को जो है अपनी कॉस्ट को कम करना चाहते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन। तो इस वजह से वो बिलो एवरेज कैश विद फ्यू इंसेंटिव्स दैट टू टाइड विद कॉस्ट कंट्रोल एफर्ट। तो वो इस तरह के रेम्यूनरेशन जो होती है देती है जिसमें जो एवरेज जो उनको कैश की सूरत में रेम्यूनरेशन दी जाती है वो बिलो एवरेज होती है मार्केट से, कंपेटिटर से। और जो इंसेंटिव्स भी होते हैं वो सिर्फ टाइटली लिंक्ड होते हैं कि कॉस्ट जो कंट्रोल एफर्ट्स हैं, जिन एफर्ट से कॉस्ट डिक्रीज हो ऑर्गेनाइजेशन के जो है ऑपरेशंस की, सिर्फ उनको रिवॉर्ड किया जाता है। और जो बेनिफिट्स होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह बिजनेस स्ट्रेटजी और पोजीशन इन दी मार्केट, क्या मार्केट की इस वक्त करंट क्या पोजीशन है, तो उसकी बेसिस पे एक स्ट्रेटजी रेम्यूनरेशन की डिसाइड की जाती है और फिर डिसाइड किया जाता है क्या ब्लेंड ऑफ रेम्यूनरेशन दिए जाएं एम्प्लॉय को। नाउ वी डिस्कस दी रेम्यूनरेशन मॉडल। रेम्यूनरेशन मॉडल क्या है? इसमें है जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब इवैल्यूएशन है, जॉब हिरार्की है, पे सर्वे हैं एंड प्राइसिंग जॉब्स हैं।
ये फैक्टर्स हैं जिस जो रेम्यूनरेशन मॉडल में हम अब जॉब डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन हेल्प आउट करती है रेम्यूनरेशन जो है डिसाइड करने में कि ऑर्गेनाइजेशन जो है इस जॉब में स्किल्स को रिवॉर्ड करेगी, एक्सपीरियंस को रिवॉर्ड करेगी, क्वालिफिकेशन को रिवॉर्ड करेगी। तो ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ये डिटरमिन करती है और हेल्प आउट करती है रेम्यूनरेशन डिसाइड करने में। जॉब एवेल्यूएशन होता है, जॉब एवेल्यूएशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्थ देखी जाती है बेस्ड ऑन दी जो जॉब डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन और एनालिसिस की बेस पे जो एक एवेलुएट किया जाता है कि इस जॉब की क्या वर्थ है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी एक डिटरमिन करती है, इन्फ्लुएंस करती है रेम्यूनरेशन सेट करने में। जॉब हियरार्की में देखा जाता है कि किस जॉब की बेस्ड ऑन अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके हियरार्कीज हैं तो वो डिफाइन करते हैं कि किस जॉब की क्या हियरार्की में पोजीशन है। अगर जो फ्रंट लाइन मैनेजर्स हैं और एक मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं और एक टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, ये 3 लेयर्स हैं फॉर एग्जांपल, तो जो हियरार्की है जो लोअर पोजीशन पे होंगे, जो फ्रंट लाइन मैनेजर्स हैं, ऑपरेशनल मैनेजर्स हैं, उनकी एक किस्म की कंपेटिटिव और कंपैरेबल पेज होंगी। और जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं उनकी पे ऑपरेशनल से ज़्यादा होगी। और इसी तरह जो टॉप वाले हैं, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो उनकी पे मिडिल लेवल मैनेजर से ज़्यादा होगी। तो डिफरेंट जो जॉब्स होती हैं डिफरेंट हियरार्की में होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की। तो हियरार्की जो है वो डिफाइन करती हैं कि किस हियरार्की में कौन सी जॉब्स फॉल कर रही हैं और उनकी फिर एक कंपेटिटिव या कंपैरेबल पे होती है। तो हियरार्की इन्फ्लुएंस करती है कि जॉब जो है इस वक्त किस हियरार्की की जॉब है, जैसे फ्रंट, मिडल या टॉप, उसकी बेसिस पे भी रेम्यूनरेशन डिसाइड की जाती है या जो रेम्यूनरेशन को इन्फ्लुएंस करती है। पे सर्वे ये डिटरमिन करने के लिए कि क्या जो है इस जॉब की जो सिमिलर काइंड ऑफ स्किल्स चाहिए या टास्क या जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है इस जॉब में, तो इसमें जो है मार्केट में क्या ऑफ़र किया जा रहा है, मार्केट बेस पे जिसे कहते हैं। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है सिमिलर इंडस्ट्री में भी जो और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस में हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे कर सकती है, उनसे पूछ सकती है कि आप किस लेवल की पोस्ट को क्या डेजिग्नेशन कैरी करती है, उसको क्या ऑफ़र कर रहे हैं। या मैनी अदर सोर्सेज हैं जिसमें सर्वेज हैं, बिजनेस मैगजीन में सर्वेज आते हैं जिसमें सैलरी का रिव्यू होता है, वो भी एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है जिसकी बेसिस पर रेम्यूनरेशन डिसाइड की जा सकती है। और इस तरह अदर जो है गवर्नमेंट एजेंसीज हैं और कंसल्टेंट फर्म्स हैं जो अपने जो हैं इस तरह के सर्विस करती हैं और जो है इंफॉर्मेशन और इस तरह की अपने बिजनेस मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये सोर्सेज होती हैं जहाँ से वो ऑर्गेनाइजेशन देख के एक अपने डिटरमिन कर सकती है कि जो जिस जॉब के लिए उन्होंने सैलरी सेट करनी है उसका मार्केट में इस वक्त क्या रेट है। प्राइसिंग जॉब्स, इसके बाद जो होता है कंसिडरेशन होती है जो टॉप मैनेजमेंट को करनी होती है रेम्यूनरेशन डिसाइड करते हुए, वो होती है प्राइसिंग जॉब। उन्हें प्राइस करनी होती है जॉब की कि क्या इस जॉब की क्या प्राइस है, क्या वर्थ है। तो वो ये ऐसे हैं कि इसमें 2 चीज़ें हैं, पे लेवल्स होते हैं और पे ग्रेड्स होते हैं। पे लेवल में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि वेज या सैलरी जो मार्केट में है उसने सर्वे की बेस पे डिटरमिन की और एक अपनी जॉब एवेल्यूएशन की बेस पे, एक पॉइंट वैल्यू की बेस पे जॉब को जो है डिफरेंट पॉइंट्स असाइन किए हैं। तो वो एक इस तरह कर सकते हैं कि स्कैटर्ड प्लॉट बना के उसमें वर्टिकल एक्सिस पे अगर वेजेस एंड सैलरी हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पॉइंट वैल्यूज हैं, तो वो पॉइंट वैल्यूज और जो मार्केट में रेट है वो जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो उस जॉब का उस पर्टिकुलर जॉब जो स्टडी कर रहे हैं इस वक्त जिसको उसका जो है प्राइस लेवल होगा, उसकी पे लेवल होगी। तो इसी तरह पे ग्रेड्स में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में मे बी हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स हों, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हर जॉब के लिए डिफरेंट पे सिस्टम हो। तो उसके लिए क्या करते हैं कि सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स जो होती हैं सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ या हियरार्की में होती हैं, उनको एक जगह ग्रेड कर लिया जाता है ताकि उनको सिमिलर
जो है काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन दें, एक तरह की रेम्यूनरेशन दें। इसी तरह जो दूसरी जॉब्स हैं उनको एक ग्रेडिंग की जाती है और उसकी बेसिस पे उनको जो है कम से कम, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो है रेम्यूनरेशन जो है पैकेजेस हों। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में होता है कि थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय जो हैं काम कर रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं होता कि हर एक के लिए एक अलग से रेम्यूनरेशन सेट की जाए, हर जॉब के लिए अलग रेम्यूनरेशन सेट की जाए। तो वो एक ग्रेड सिस्टम चल रहा है, जैसे ग्रेड 16, ग्रेड 17, ग्रेड 18, ग्रेड 19। तो ये इन्होंने एक रख लिया है कि ये इस ग्रेड 17 के लिए ये क्वालिफिकेशन है, ये एक्सपीरियंस है और ऑलमोस्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो स्किल्स चाहिए और जो क्वालिफिकेशन है सिमिलर हैं, और एक तरह की जॉब्स कंसीडर करके उनको एक ग्रेडिंग कर दी है। इसी तरह ग्रेड 18 में ऊपर है, उनकी जो पे लेवल्स हैं ग्रेड 18 के BS 18 में वो सिमिलर हैं, एक तरह के वे जो है बेसिक पे और बेनिफिट्स हैं ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत इनमें फ्लक्चुएट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती हैं, मगर जनरली जो है एक ग्रेड सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम है। तो उसमें जो BS 18 में फॉल करेंगे वो जो है वो उनके लिए एक जो है पे लेवल रख दिया जाता है जॉब में। तो जो एक ग्रेड में उनको एक ही तरह की पे दी जाती है। तो ये हेल्प आउट करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू मैनेज देयर कंपनसेशन बजट, ताकि कम जितने ग्रेड्स कम होंगे उतना आसान होगा रेम्यूनरेशन सेट करना। ये टास्क आसान कर देता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ रेम्यूनरेशन कि जब रेम्यूनरेशन सेट करते हैं क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। देख रहे हैं कि आप जो सेंटर वाला जो है बॉक्स, इसमें रेम्यूनरेशन है, उससे ऊपर देखें तो मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड्स हैं, सैलरी रिव्यूज़ हैं, पे सीक्रेसी हैं, एलिटिसिज्म हैं, कंपेरेबल वर्थ हैं, लो मार्केट और अबव मार्केट पे हैं, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन है और स्किल बेस पे। ये जो इश्यूज हैं इनको बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करना चाहिए बिफोर डिसाइडिंग रेम्यूनरेशन। तो मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड्स में ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना होता है कि मॉनिटरी रिवॉर्ड कितने देने हैं और नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड का क्या जो है परसेंटेज होगा सैलरी में। तो इसमें ये इश्यूज हैं कि नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड जो होते हैं बेसिकली एट सम टाइम वो जो उसमें है टैक्स से एग्जेम्प्ट होते हैं, पार्शियली या फुली एग्जेम्प्ट होते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को कोशिश करती हैं एज अ पार्ट ऑफ जो है बेनिफिट्स नॉन मॉनेटरी रिवार्ड्स जो हैं और एम्प्लॉइज़ को दिए जाएं ताकि उन्हें टैक्स डिडक्शन नहीं होती। तो ये जो है डिसाइड करना कि मॉनेटरी का क्या कंट्रीब्यूशन हो, परसेंटेज, और नॉन मॉनेटरी का क्या हो, ये रेम्यूनरेशन में एक चैलेंज है जो ऑर्गेनाइजेशन में HR मैनेजर को देखना चाहिए। सैलरी रिव्यूज़ हैं, फिर ये कि वे पीरियडिकली सैलरी रिव्यूज़ हैं, इसमें जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो सर्वे होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए सैलरी का। ये एनुअल बेसिस पे भी हो सकता है क्योंकि जॉब रिक्वायरमेंट चेंज होती हैं, स्किल्स सेट चेंज होते हैं, किसी जॉब की इन सर्टेन कंडीशन वैल्यू ऑफ वर्थ चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दी मे बी स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि अगर मार्केट एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं और एफर्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग जो है टॉप मैनेजमेंट कोशिश स्ट्रेटजी ऐसी बनाई है तो उसमें अल्टीमेटली दे विल फोकस और दे विल पुट मोर एम्फेसिस ऑन मार्केटिंग जॉब्स। तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स को इंसेंटिव देना पड़ेगा, उनकी सैलरीज रिव्यू करनी पड़ेंगी, उनको इंसेंटिव सिस्टम ऐसे डिज़ाइन करना पड़ेगा ताकि वो इनकरेज हों। क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी है कि एक्सप्लोर करे न्यू मार्केट्स या उसमें अग्रेसिवली मार्केटिंग करे अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज की। तो ये सैलरी रिव्यूज़ जो होता है हेल्प आउट करने में तो सैलरी रिव्यूज़ जो होता है वो हेल्प आउट करता है ऑर्गेनाइजेशन को रेम्यूनरेशन डिसाइड करने में, और इतनी हो कि जो विद द पीरियड ऑफ टाइम जो इंडिविजुअल हैं वो डिससेटिस्फाइड ना हो अपनी जॉब से और जो करंट उसकी जो कंडीशन और रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसकी एक्सपेक्टेशन सैलरी से मैच कर रही हों। पे सीक्रेसी, अब ये इशू हैं कि पे सीक्रेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कम फैमिली ऑन बिजनेस हैं
तो उसमें ये होता है कि नॉर्मली जो पे होती है वो सीक्रेट रखी जाती है, उसमें नहीं बताया जाता कि एम्प्लॉय को कितना शेयर मॉनिटरी में दिया जा रहा है, नॉन मॉनिटरी में दिया जा रहा है, मे बी लमसम पे किया जाए और डिस्क्लोज नहीं किया जाता। मगर ये एक इशू है कि जब जो इंसेंटिव बेस पे सिस्टम लाना है, रिवॉर्ड बेस पे सिस्टम लाना है, तो उसमें इंसेंटिव बेस्ड पे सिस्टम है या परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम है, तो उसमें ये कि एक जो है आर्गुमेंट ये है कि वो देना चाहिए, बताना चाहिए कि इस जो है पे उसकी जो है जो सैलरी है उसमें किन चीज़ों किन जो है फैक्टर्स का है, कंपनसेबल फैक्टर्स हैं, वो कितने कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ताकि उसे पता चले कि उसकी जो बेसिक पे है और उसके जो बेनिफिट्स हैं, कमीशन है, इंसेंटिव्स हैं, वो कितने, ताकि उसके लिए एक इंकरेजमेंट हो और प्रोडक्टिविटी हो। दूसरा इशू ये है कि फिर वो पे सीक्रेसी में कुछ ऑर्गेनाइजेशन को फिर ये इशू भी होता है कि वो अगर पे ओपन हो तो फिर उसमें डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कंपेयर करना शुरू कर देते हैं जॉब एक अपनी जो है पे वो दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स हैं उनकी पे से अपनी पे को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो ये डिसाइड करना ऑर्गेनाइजेशन में पे सीक्रेसी, तो ये डिसाइड करना ऑर्गेनाइजेशन ने कि पे सीक्रेसी कितनी होनी चाहिए। Now fourth issue is elitism और egalitarianism, और जो ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेम पे सिस्टम या रेम्यूनरेशन सिस्टम डिफरेंट जॉब्स को रखती हैं वो एजिलिटेरियनिज्म कहलाती हैं। तो इसमें इश्यूज हैं कि क्या हाईली डिफरेंट जो है डिफरेंट पे सिस्टम होना चाहिए जॉब्स का या अंडर द सेम कैटेगरी जो है। इसमें जो एजिलिटेरियनिज्म में है वो इसमें बेनिफिट ये होता है कि जो एम्प्लॉय की डिप्लॉयमेंट है या प्लेसमेंट है किसी भी जॉब पे की जा सकती हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इट कैरी सिमिलर नेचर ऑफ और सिमिलर काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन। तो उसमें आसान हो जाता है काम ऑर्गेनाइजेशन का प्लेसमेंट करना जो इंडिविजुअल को है किसी और प्लेस पे विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। जो एलिटिसिज्म है उसमें ये है कि ये इट रिजल्ट इनटू मोर स्टेबल वर्क इन्वायरमेंट, क्योंकि जैसे जैसे वर्क के साथ एक्सपीरियंस के साथ हायर ग्रेड पे जाएगा एम्प्लॉई हायर उस पर, तो डेफिनेटली उसका जो पे डिफरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा नीचे वाली पोस्ट से। तो वो एक इनक्रेज करते हैं वर्क फोर्स को कि वो रिटेन रहें और काम करें ऑर्गेनाइजेशन में फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और ट्राई करें कि प्रोमोट हों ताकि उनके पे में अच्छा खासा डिफरेंस आए। पैरेबल वर्क में ये होता है कि एक जो ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर ऑफ जॉब है, क्वालिफिकेशन के साथ हैं, डिफरेंट ट्रेड्स में हो सकती हैं, तो उनको सिमिलर रेम्यूनरेशन होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रीशियन हैं और जो है ऑटो मैकेनिक हैं, वो एक सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स हैं, और तो उसमें ये है कि जो इनकी जो पे होनी चाहिए हाईली डिफरेंस नहीं होना चाहिए इसमें, और कंपैरेबल अनफ होना चाहिए। अगर एक प्रोफेशन में एक जॉब को पे किया जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल नर्सिंग स्टाफ हैं, उसमें अगर मेल हैं तो फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी सिमिलर एक रेम्यूनरेशन होनी चाहिए। तो जॉब एवेल्यूएशन जो है हेल्प आउट करती है कि अगर जैसे अभी नर्सिंग प्रोफेशन और इलेक्ट्रीशियन सिस्टम है, इसमें जो पॉइंट वैल्यू सिस्टम की बेसिस पे जो पे आई है उसमें वेज मार्केट का और पॉइंट वैल्यू दे के जो एक वेज सेट हुआ है, तो उसमें ये है कि एक तरह के अगर पॉइंट्स हैं दोनों जॉब्स के, नर्सिंग और इलेक्ट्रीशियन, ऑल दो दे आर इन डिफरेंट ट्रेड्स, मगर उनकी पॉइंट वैल्यू सिस्टम में एक जो है जो वैल्यू आई है तो उनको सिमिलर रेम्यूनरेशन देनी चाहिए। तो बिलो मार्केट और अबव मार्केट पे इसमें फिर डिसाइड करना होता है कि जो मार्केट में प्रिवेलिंग रेट है उस जॉब का उससे बिलो ऑफ़र करनी है या अबव मार्केट पे ऑफ़र करनी है। नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती हैं कि अट्रैक्ट करें कॉम्पिटेंट स्टाफ फ्रॉम इंडिविजुअल, जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती हैं कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल जो हैं अट्रैक्ट करें और जो है हाईली टैलेंटेड स्किल्स जो हैं मार्केट से अट्रैक्ट करें, तो वो नॉर्मली वो करती हैं कि मार्केट बेस जो है पे उससे अबव मार्केट बेस पे सेट करती हैं, ताकि जो एक कंपनी से जो है जो दूसरी
जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से हैं टैलेंटेड और स्किल्ड वर्कफोर्स है वो उनकी तरफ आए, तो उस केस में वो हाई मार्केट पे सेट करते हैं, जो मार्केट में प्रेवलिंग होता है उससे हाई जो होता है उनका सैलरी होती है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, दिस इज़ अनदर इशू कि एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन कितनी होनी चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी लेवल पे रिवॉर्ड सिस्टम जो है और इंसेंटिव सिस्टम को सेट करते वक्त एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन को मेक इंश्योर करती हैं, चाहती हैं कि एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करें, तो उसमें ये है कि उनकी इनपुट जब ली जाती है तो वो उनकी जो है सेटिस्फेक्शन होती है, जब वो एग्री करते हैं अपने कंपनसेशन पे, तो वो फिर उनकी तरफ से ग्रीवेंसेस या जो है रिजर्वेशंस नहीं रहती। तो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन अच्छा है कि होना चाहिए वाइल सेटिंग सैलरी फॉर डिफरेंट जॉब्स और डिफरेंट ग्रेड्स, उसमें डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आ सकते हैं डिफरेंट जो है जॉब्स के और हिरार्की से, और वो फिर इनपुट दे सकते हैं और जिसकी बेसिस पे जो सैलरी सेट की जाएगी इट वुड बी मोर रियलिस्टिक, और उसमें यह है कि एम्प्लॉय की जो ग्रीवेंसेस हैं रिजर्वेशन है कम से कम होगी। नो इट्स ए स्किल बेस पे कि स्किल को रिवॉर्ड करना है या जॉब को रिवॉर्ड करना है। नो वी डिस्कस इट स्किल बेस्ड और जॉब बेस पे, इसमें क्या डिफरेंस हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें जो है पे स्ट्रक्चर जो होता है स्किल बेस में, उसमें होता है एबिलिटी टू परफॉर्म, जो एम्प्लॉय के पोटेंशियल होती है स्किल्स होती हैं उसकी बेसिस पे जो है रेम्यूनरेशन सेट की जाती है। और जो उसमें होता है जॉब बेस में कि उसमें पोटेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को नहीं, रादर कि जॉब परफॉर्मेंस को देखा जाता है कितनी, उसकी बेसिस पे सैलरी सेट की जाती है या रिवॉर्ड दिए जाते हैं। एम्प्लॉयर्स फोकस क्या होता है इसमें, एम्प्लॉय कैरीज वेजेस एम्प्लॉय लिंक टू स्किल, इसमें यह है कि जो हर इंडिविजुअल की अपनी एक सैलरी होगी बेस्ड ऑन देयर स्किल्स कॉम्पिटेंसीज क्वालिफिकेशन एक्सपोजर एक्सपीरियंस, जबकि जो इसमें है कि हर जॉब की एक अपने वेज स्ट्रक्चर है और एम्प्लॉय जो हैं उस जॉब के साथ लिंक किया जाता है। एम्प्लॉय का फोकस क्या होता है इसमें, स्किल एक्विजिशन और फॉर मोर पे, इसमें जो एम्प्लॉय हैं स्किल बेस पे में एफर्ट करता है कि वो लर्निंग करे और स्किल एक्वायर करे, अपनी जो है क्वालिफिकेशन इन्हांस करे और टेक्निकल प्रोफिशिएंसी इन्हांस करे। तो उसमें ये होगा, उसे पता है कि उसको जो रिवॉर्ड किया जा रहा है वो स्किल्स को रिवॉर्ड किया जा रहा है। जो उस और जो इसमें है जॉब बेस में वो जो फोकस होता है एम्प्लॉय का वो होता है कि वो प्रमोशन ले, क्योंकि उसमें ग्रेडिंग होती है, हायर पे जाएगा प्रमोट होगा तो मीन्स वो ज़्यादा अच्छी पे लेगा। प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड क्या होते हैं इसमें, जो होता है जब पे सेट करनी होती है सैलरी सेट करते हुए स्किल असेसमेंट की जाती है और देखा जाता है क्या स्किल्स चाहिए और किस स्किल्स की क्या वैल्यू उसकी बेसिस पे सैलरी डिटरमिन की जाती हैं। इसमें जो है जॉब बेस में देखा जाता है कि जॉब कंटेंट क्या है, उसकी जॉब में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको जॉब असेस की जाती है और उसकी वैल्यू पे डिफरेंट जॉब्स को वैल्यू किया जाता है और उसकी उनकी फिर जो है सैलरी सेट की जाती है। एडवांटेजेस क्या स्किल बेस में ये हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप डिफरेंट जो है सैलरी ऑफर कर सकते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स को बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन, और रिड्यूस वर्कफोर्स होती है, इसमें ज़्यादा जॉब्स फैमिलीज नहीं होती, ग्रेडिंग नहीं होती, मल्टीटास्किंग इंडिविजुअल हो सकते हैं जो बिकॉज ए स्किल बेस्ड पे सिस्टम, तो उसमें एक इंडिविजुअल को मल्टीपल टास्क या मल्टीपल जॉब्स करना पड़ती हैं। तो इसमें यह है कि फिर ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो वर्क फोर्सेस को रिड्यूस कर सकती है और एलिमिनेट कर सकती है डिफरेंट जॉब्स को। और पे बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ जॉब एंड वर्क परफॉर्म, तो इसमें जो होता है वो जो वर्क परफॉर्म होता है और जो जॉब की वैल्यू है उसको देखते हुए जो है एम्प्लॉय को रिवॉर्ड किया जाता है कि वो किस जॉब पे हैं और उस वक्त उसकी जॉब वैल्यू जो जॉब की ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू क्या है, ग्रेड क्या है, हिरार्की में किस जगह फॉल हो रही है और उसकी वर्क परफॉर्मेंस क्या है। डिसएडवांटेजेस क्या है, जो जॉब बेस का एडवांटेज है डिसएडवांटेजेस हैं वो इनफ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स को डिफरेंट पे नहीं दे सकते बेस्ड ऑन देयर स्किल और स्किल्स और एक्सपीरियंस। तो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन
कंपनसेशन देनी पड़ती है, अनलेस कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इंक्रीमेंट है एनुअल उसकी बेसिस पे, सीनियरिटी की बेसिस पे उसकी पे ज़्यादा हो सकती है, मगर जो एक जॉब ग्रेड में होते हैं वो एक तरह की पे ले रहे होते हैं, तो इसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है आपने, और ऑर्गेनाइजेशन के जो लिए मुश्किल होता है कि जो हाईली कॉम्पिटेंट और जो स्पेशल स्किल्स हैं किसी इंडिविजुअल के पास, उसको हाई पे अट्रैक्ट किया जा सके। Dear students, now we sum up what we have studied in today's lecture. We studied the benefits of proper compensation, what are the benefits of giving proper compensation to employees, and what are the consequences of inadequate compensation system. इसमें हमने देखा कि अगर compensation system अगर proper ना डिज़ाइन किया जाए तो इससे एम्प्लॉयज़ की डिससेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है और जिससे उनकी जॉब इन्वॉल्वमेंट और मोटिवेशन कम होती है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी सफ़र करती है। देन वी लुक इनटू द कंपोनेंट्स ऑफ द रेम्यूनरेशन कि क्या कंपोनेंट्स हैं इसमें। फाइनेंशियल देखे और नॉन फाइनेंशियल कंपोनेंट्स को हमने देखा कि कौन कौन से हैं। थ्योरीज ऑफ रेम्यूनरेशन देखी, इक्विटी बेस्ड थ्योरी और एजेंसी थ्योरी क्या है, और इसके बाद हमने फैक्टर्स देखे जो इन्फ्लुएंस करते हैं रेम्यूनरेशन को फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। फिर हमने डिस्कस किया रेम्यूनरेशन मॉडल के क्या इश्यूज हैं या क्या फैक्टर्स हैं जिनको देख के जिनकी बेसिस पे रेम्यूनरेशन सेट की जाती हैं, और इसके बाद हमने देखा कि रेम्यूनरेशन जो सेट करते हैं, जो स्ट्रेटजी बनानी होती है, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फॉर today that's all, and we will discuss incentive system in next lecture, and thank you very much dear students, and Allah Hafiz.